ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬਲੌਗਰ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਗਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਰਾਜਨ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਨਾਲੇ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਈਦ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਫਕੋਰਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਵੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਰਾਜਨ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਢਾਬੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਢਾਬਾ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 670 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ 4 ਲੇਨ ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਟੂ 8 ਲੇਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਾਜਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਗਰ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਰਾਜਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? हिंदी अगर कंफर्टेबल रहेगा तो ठीक है सर। सो हिंदी में बात करते हैं। सो लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा सर। अच्छा डोंट वरी, ऐसे करेंगे आप हिंदी में बोलें, हम पंजाबी में आपसे जो भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है सर? ठीक है सर, चलेगा। ठीक है जी। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੈਲਸ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੈਲਸ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬਿਟ ਜੈਲਸ ਵਿਦ ਯੂ। थैंक यू सो मच सर। सर बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि आपको जेलस हो रहा है इन अ गुड वे। अच्छी बात है ये तो। हाँ जी। तो सर थोड़ा सा बताएं पहले राजन जी, आपसे ही जानना चाहेंगे आपके बारे में। आपका ये मन कैसे बना आपका और कब से ये स्पेशली आपने ये प्लान किया कि अलग अलग जगह पे जाके घूम के ऐसे आप अपने ब्लॉग्स बनाओगे? थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। तो सर मैंने 2019 में ये जर्नी स्टार्ट करी थी। ऑफकोर्स क्योंकि मैं एनसीआर से हूँ, गुड़गांव से हूँ, तो सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट मैंने गुड़गांव का ही स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद जब नए नए व्यूअर्स ऐड होते गए, उनके रिक्वेस्ट आते गए कि आप ये भी कवर कीजिए, आप ये भी बताइए, ये एक्सप्रेसिव बन रहा है। सो एक ना बहुत ज़्यादा लोगों में चाहत थी ये जानने की कि अपने देश में क्या क्या बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से बताऊँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट, इट्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और मतलब वो कहते हैं ना कि भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अपनी मिट्टी से तो उसको प्यार है ही, ये उसको जानना है जब भी मौका मिलता है कि मेरे देश में क्या हो रहा है। सो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत मेजर रोल प्ले करता है और वही गैप को मैंने फिल करने की कोशिश करी है और कोशिश अभी भी जारी है सर।
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ 407 ਹੈਗਾ ਜਾਂ 410 ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 4 घंटे सफर हो जाएगा, जिधर ट्रेन अजय भी 5 घंटे लाती हैगी। जी हाँ जी, राइट। सो राजन जी, थोड़ा सा आप बताएं कि स्पेशली अगर हम आज की बात करें, जैसे हमने ये बात कर रहे हैं कि काफ़ी देर से ये जैसे कहें कि जो ज़मीनों को एक्वायर कर लिया गया था और काफ़ी सारा इस पे ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बजट भी एलोकेट किया जा चुका है। बट कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से एक समय था जब थोड़ा सा इसके लिए लोगों ने विरोध किया शुरू में कि वो नहीं चाहते थे कि ऐसे उनकी ज़मीन जो जहाँ पे इतनी लंबे समय से वो अपनी खेती बाड़ी का काम करते आ रहे थे, उनको भी ऐसे एकदम से एक्वायर कर लिया जाए। सो थोड़ा इसी पॉइंट से अगर शुरू करें, क्योंकि अभी तो वो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि लोगों को वो मानना ही पड़ेगा जो एक बार प्लान बन गया। सो थोड़ा उस विरोध से शुरू करते हुए आप कैसे देख रहे हो, अगर आपने कोई स्टडी की हो इस चीज़ के बारे में? सर, तो इसमें जो डिटेल प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट बना था इसका 2019 में आया था, जिसमें ऑलमोस्ट जो बजट था वो 40,000 करोड़ का उस समय दिया गया था। और पंजाब से तकरीबन 14,000 एकड़ लैंड जो है वो एक्वायर करना था, और हरियाणा में 5,000 एकड़ के आसपास एक नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट था। कुछ लोगों में एक नाराजगी उस वक्त पे थी कि हाँ, वो मतलब जिस वजह से ये जिस रूट से वो निकाला जा रहा था, और पंजाब की जमीन वैसे भी उपजाऊ है, तो एक उस वक्त पे आक्रोश था। लेकिन सबसे अगर इसका कॉरिडोर का ये जो रूट अगर आप देखेंगे सर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पंजाब के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री से या किसी भी इन्वेस्टर्स को अगर आप किसी भी रीजन में अगर डालना चाहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो जैसे ही अगर इसका रूट की मैं बात करूँ जहाँ से ये गुजर रहा है, तो दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेस तो ये बनाया जा रहा है, लेकिन जैसे खरकोदा, जींद, आपका मलेरकोटला, लुधियाना, जलंधर, गुरदासपुर, इन एरिया को जब ये टच करेगा, तो इंडस्ट्री बचाना या उन जगहों पे आपको नए टाउनशिप बनाने आसान हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, क्योंकि ये पूरा नया रूट है। ये जो पुराना रूट है उससे एकदम अलग बनाया गया है। अब पुराना रूट अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी उस पर लोड व्हीकल का बहुत ज्यादा है, तो कई बार आपका ट्रेवल टाइम भी आपका उस पर इसीलिए ज्यादा भी लग जाता है। आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है कि स्लो डाउन भी लग जाए। तो इसीलिए एक नया रूट बनाना भी उतना ही नेसेसरी था, जो कि अभी हम देख रहे हैं जो रूट अभी बन रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का। राइट। तो अभी आप अगर देखें तो इसमें मतलब आपको क्या लग रहा है कि कितने % इसको कंप्लीट कर लिया अभी तक हो चुका है, या इस पे अभी शुरुआती दौर पे है ये? सर, कुछ हिस्सों में जैसे पंजाब के जहाँ पर काम ऑलमोस्ट हो चुका है, जैसे कि अगर मैंने अभी कुछ दिन पहले भी इसका कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिया था, और मलेरकोटला वाला जो हिस्सा है वो लगभग अगर मैं आपसे कहूँ तो वो बनकर तैयार हो चुका है। तो वो हिस्सा अगर आप देखेंगे तो दैट गिव यू द एग्जैक्टली द व्यू की क्या कुछ ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। और जैसे पंजाब जाना लोगों के लिए और आसान हो जाएगा दिल्ली से, तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देखें या सबसे बड़ा जो पॉइंट है अगर आप देखेंगे तो टूरिस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, क्योंकि अमृतसर लोग अच्छे खासे संख्या में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उनके लिए ट्रेवल टाइम बहुत हद तक कम हो जाएगा। एंड इंडिया में ये चीज बढ़ रहा है कि लोग कार से ट्रेवल करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका वो उतना ज्यादा एक तो उसमें प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। कार से अगर आप ट्रेवल करते तो आप हो सकता है 1-2 दिन पहले प्लानिंग करके आप जा सकते हैं,
बट रेल या अगर आप प्लेन से ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको एक एक महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि टिकट्स लेने पड़ते हैं, और प्लेन में अगर जितने पहले लेंगे तो थोड़ा इकोनॉमिकल भी हो जाता है। रोड्स में ये बेनिफिट हो जाता है लोगों को कि चलिए वो 1 दिन या 2 दिन पहले प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक अगर आप देखेंगे तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा नंबर्स में उछाल देखने को मिलेगा। ये जब हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा तो चाहे वो कटरा वाले हिस्से की बात कर लो या अमृतसर वाले, और प्लस इंडस्ट्री के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब वैसे भी इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत बड़ा एक हब है और फर्स्ट डेस्टिनेशन भी है बहुत सारे इंडस्ट्री। तो इसी वजह से ये जो कॉरिडोर है, स्पेशली जो अमृतसर कटरा एक्सप्रेस है, दिस इज पार्ट ऑफ लुधियाना कोलकाता दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो एक कॉरिडोर का निर्माण है जो कि कोलकाता, लुधियाना और दिल्ली, अमृतसर को आपस में और इन सबों को कनेक्ट करेगा। तो ये उसी का हिस्सा है। तो एक तो टूरिस्ट सेक्टर में और प्लस इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। अच्छा राजन जी, एक चीज और बताएं कि क्योंकि ना कई बार जब मेरी भी, क्योंकि हमारे जो जालंधर की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, गांव हैं जो इसके अंडर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब बात करते थे हम अपने गांव में तो ये बोलने को या सुनने को मिलता था कि यार इतना ज्यादा इसकी हाइट होगी तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फ्यूचर में, जब कभी बारिश होती है, ज्यादा बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो ये इतनी ज्यादा इसकी हाइट दी जा रही है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहें कि ये इसको जब बनाना होता है या इसके लिए जो प्लानिंग की जाती है, इसको इतना हाइट दे के बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ओके, तो सर अगर आप देखेंगे तो पहले जो हमारे NH बने थे, मतलब मैं अब पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि आज से 30 साल 40 साल पहले जो NH बने थे, तो वो भी ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है। मतलब एक ऐसा रोड था जहां पर आसपास आपको कुछ देखने को खास नहीं मिलता था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो सिटी है वो NH के आसपास आती चलेगी। तो वो जो इंकरेजमेंट है, आप अगर बोलोगे कि बहुत सारी जो ऐसे पॉइंट्स वहां पे बन गए उस रोड पे, जिसकी वजह से स्लो डाउन होने लग गया, और उसको आपको ना चाहते हुए भी आपका हमारा ट्रेवल टाइम जो है वो बढ़ा है उस हाईवे पे, NH पे। चाहे वो हमारा जो NH44 ही है जो कि कन्याकुमारी टू कश्मीर जाता है, जिसे हम दिल्ली चंडीगढ़ रोड या दिल्ली अमृतसर रोड कहते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे जो जगहों पे आपको स्लो डाउन मिलते हैं अभी भी, और उसको अब सॉर्ट आउट करना बहुत टफ है। तो इन सब चीजों की वजह से अगर आप देखेंगे ये जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, ये चाहे ये छोटे रोड को क्रॉस करे या बड़े रोड को क्रॉस करे, उसमें जितने भी अगर आप देखेंगे अंडरपास बनाए जा रहे हैं, व्हीकल अंडरपास या एनिमल अंडरपास, वो ये मेक श्योर किया जा रहा है कि आज से 10-15 साल बाद भी अगर ये जो छोटा रोड है जो 1 लेन का है, अगर ये 2 लेन या 3 लेन करना हुआ तो उतना वाइडर वो अंडरपास तो एक दे रहे हैं वो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहां पे वो सरकार ये चाहती है कि जहां पर पंजाब की सरकार इंडस्ट्री डिसाइड करे, वहां पर प्लानिंग के हिसाब से वो इंडस्ट्री डेवलप्ड हो। अगर हर जगह वो जमीन के समतल में होगा तो कल को जो आप आज जो प्रॉब्लम आज NH पे देख रहे हैं, यही प्रॉब्लम आपको आने वाले 20-30 साल में फिर एक्सप्रेसवे पे भी देखने को मिल जाएंगे। सो एक्चुअली इसका जो फ्री वे का जो कॉन्सेप्ट है, वो फिर फ्री वे का कॉन्सेप्ट आपका 20-30 साल बाद रह नहीं पाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नया प्लानिंग निकाला है, जिसमें ये है कि एक्सप्रेसवे को लिमिट तक, एक हाइट तक हम बनाएंगे, और उसके बाद इनके बीच में इस पूरे रूट पे, अगर आप ये 650 किलोमीटर का जो रूट है, इसमें सरकारें डिसाइड करेंगी कि किस जगह पे इंडस्ट्री आएगी और किस जगह पे यहाँ पे आपका हाउसिंग आएगा। तो पूरी मास्टर प्लानिंग का ही पार्ट है ये। जैसे कि अगर आप जालंधर की अगर मैं बात करूं तो जालंधर से इससे तो नहीं जा रहा है, ये जालंधर के आउटर से जा रहा है, अप्रोक्स 25 किलोमीटर दूर से। तो जालंधर सिटी को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली एक पूरा 25 किलोमीटर का एक नया रोड भी बनाएंगे, जिससे कि एक स्पर बोलते हैं, जिसको ब्रांच एक कह सकते हैं आप, जो कि जालंधर सिटी से जब आप आना चाहते हैं इस एक्सप्रेसवे पे तो आप आसानी से आ सकते हैं। और उनके बीच में वो जो जितने भी क्लस्टर्स होंगे वहां पे इकोनॉमिकल जोन, इंडस्ट्री जोन बनाया जाएगा। तो एक प्लानिंग आप बेहतर सिटी की फ्यूचर में कर सकते हैं, और उसी की मद्देनजर ये पूरा एक्सप्रेसवे, अगर आप जो जितने, सिर्फ इस एक्सप्रेसवे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में अभी जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं ये इसी तय नॉर्म से बन रहे, कहीं पे 10 फीट कहीं पे 15 फीट हाइट पे बनाया जा रहा है, जिससे कि फ्यूचर में प्लानिंग करने में या स्लो डाउन न लगे उसमें। अच्छा, इसमें राजन मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम बोलते हैं कि यार माइनिंग हो रही है, लैंड की, मिट्टी की, हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। तो जब हम इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो वो मिट्टी लेके उसको हाइट देने के लिए कहीं ना कहीं से तो वो डिगिंग की जा रही है ना। तो वो माइनिंग को लेके भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेशल कोई ऐसी पॉलिसीज या प्लान्स बने हुए हैं, या कैसे मैनेज किया जाता है? इतनी मिट्टी कहाँ से आ रही है?
राइट तो एक्चुअली में क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट पे इतनी सारी मिट्टी यूज नहीं हो रही है। बेसिकली गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा, आप दिल्ली से अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको एक दो ये जो कूड़े के पहाड़ है वो दिखते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है जिसमें से ये जितने भी आपको ये जो कचरे के पहाड़ है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको सेग्रीगेट करके उनके पार्ट्स को, मतलब उसी को यूज किया जा रहा है बहुत सारे। जैसे कि दिल्ली वाला जो इसका हिस्सा है जो इस्तेमाल जो बनेगा, तो दिल्ली वाले हिस्से पे ऑलरेडी ये कचरे को वो रिफर्बिश करके उसको सेग्रीगेट करके और उसी कचरे की मिट्टी को बना करके, मतलब डस्ट बना करके उसी को यूज किया जा रहा है एक्सप्रेसवे पे। और ये दिल्ली वाले पूरे हिस्से पे आपको वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एक्चुअली। यस, तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जो आजादपुर का या गाजीपुर का जो आपका कचरे का पहाड़ था उसकी हाइट दिन पर दिन कम होती जा रही है, क्योंकि उनको प्रोसेस करके फिर उस कचरे को डाला जा रहा है एक्सप्रेसवे के ऊपर, ताकि मिट्टी की दिक्कत ना पड़े और मिट्टी को फ्यूचर में यूज ना करे। इसके लिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो इस एक्सप्रेसवे पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे ही ये 100% सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपको हर एक्सप्रेसवे पे ज्यादातर पार्ट में यही आपको दिखेगा कि टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा राजन, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, एक ब्लॉगर हो, या आप तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन की तरह नॉलेज है आपके पास तो। नहीं सर, मेरे पास एक्चुअली मैं ये काम कर करके नॉलेज है, कोई गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बता दें अपने बारे में, कहीं ये ना हो कि हमारे लिसनर सोचे कि यार शायद कोई गवर्नमेंट का बंदा बात कर रहा है हमारे साथ और वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपनी माइलेज लेने के लिए गवर्नमेंट के लिए बातें चल रही हैं। भूपेंद्र जी तुसी इस पॉइंट पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर दें। मैं एक इंडियन बोल रहा हूँ जिसको अपने देश से प्यार है और उसको ये देखना अच्छा है, लगता है कि किस तरीके से इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो मैंने जितने भी स्टेट हैं जो मेरे नियर अबाउट है, ऑलमोस्ट मैंने पूरा वेस्ट, पूरा ईस्ट और ऑलमोस्ट अपने पूरा नॉर्थ, तो क्योंकि मैं एनसीआर में रहता हूँ तो नॉर्थ सेंट्रल ये सब कुछ कवर किया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट हैं और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं। और मैंने 2019 से लेके अभी तक 950 वीडियोस बना चुका हूँ, और जो कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। और मेरे पास इतनी नॉलेज इसलिए क्योंकि मैंने इतने डीप रिसर्च किए हैं, ताकि मुझे 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स को बताने होते हैं ये चीजें। और प्लस पॉइंट ये है मेरे ब्लॉग्स में, इंफ्रा में, कि सर मैं लाइव अपडेट दिखाता हूँ। सो मैं डेटा के ऊपर बात नहीं करता, मैं वो दिखाता हूँ। अगर मलेरकोटला का हिस्सा जो मैंने अभी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का दिखाया है, तो मलेरकोटला में इंटरचेंज बन गया है, वो सिर्फ मैंने बोला ही नहीं है, वो ड्रोन की मदद से दिखाया भी है। तो अगर मलेरकोटला में इंटरचेंज बना है, और सोचिए दिल्ली से कोई बंदा मलेरकोटला जाता है तो सोचिए कितना कम टाइम में वो पहुंच पाएगा। जलंधर जैसे आप कह रहे हैं तो जलंधर आप 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आपको अगर मैं दिखाऊंगा तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे इस रीजन में काम हुआ है। तो मेरा बस इतना काम होता है सर, कि इसलिए मेरे चैनल का नाम है RS Live। सो R स्टैंड फॉर माई नेम राजन, S फॉर सिंह, एंड लाइव की एग्जैक्टली मैं आपको वही दिखाऊंगा जो काम हुआ है। मैं कभी DPR के ऊपर बात नहीं करता, प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया उसके ऊपर भी बात नहीं करता। जिस दिन जमीन पे धरातल पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है मैं उसकी बात करता हूँ। सो दोस्तों एक बार फिर दस दें, इस ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਲੌਗਰ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਫਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। RS Live ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਟੇਲਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਚਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹਾਈਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਮੇਰੀ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਪਰ ਮਿਟ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਤੇ ਨੇ ਫॉलोअर हैगे और इतनी ज्यादा इन्हों की पहुंच हैगी। जी हरजिंदर, वेरी गुड। अच्छा राजन, एक चीज मैं थोड़ा सा, चलो भूपिंदर जी ने जैसे बोला है कि चलो इतना ज्यादा पॉलिटिकली इसको मैं देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्पेशली अगर किसी चीज के लिए काम कर रही है, तो अगर उनको पोलिटिसाइज करने के लिए, अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए कोई ऑप्शंस मिलते हैं तो वो पोलिटिसाइज करते हैं, उनको करना चाहिए, डोंट वरी, है ना। बट मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब कनाडा में हम बात करते हैं, रेडियोज पे हमारे टॉक शोज वगैरह होते हैं, तो कई बार ना दूर से हम देख रहे होते हैं, इधर उधर से कुछ चीजें हमारे पास डायरेक्टली नहीं पहुंची होती, बातें सुनाई होती हैं कई बार। तो थोड़ा सा आप बताएं इस समय, स्पेशली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इंडिया लेवल पे आप सचमुच ये चीज मानते हो कि बहुत बड़े स्केल पे काम चल रहे हैं, या सिर्फ ये बातें ही हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही किया जाता है, या सिर्फ इसको पोलिटिसाइज ही किया जाता है? कैसे चल रहा है, थोड़ा सा बताएं प्रैक्टिकली। आपने तो सारा घूम रहे हो अलग अलग जगह पे। सर देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बोलूं तो आप मतलब चाहे आप डेटा पे देख लें या जो एग्जैक्टली ग्राउंड पे है, तो ये आपको इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है विदाउट अ डाउट। चाहे वो मैं किसी एक स्टेट की बात करूं, हर स्टेट में अगर आप देखेंगे तो हो रहा है। और जैसे पंजाब में भी अगर ये जो अमृतसर कटरा एक्सप्रेस है, मेरा ये मानना है कि ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि इतने सारे लोग दिल्ली से अमृतसर ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो NRIs है, जो देश से बाहर रहते हैं, वो जब ट्रेवल करते हैं, आप इस रोड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा ट्रेवल लोड है एक रोड के ऊपर। तो मुझे लगता था कि ये एक्सप्रेसवे बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि और गति लानी चाहिए सरकार को इसको बनाने के लिए। एंड यस, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। और आने वाले टाइम में, क्योंकि आप देखिए इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे बहुत सारी चीजों की वजह से हम एप्पल को यहाँ तक लेके आए हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एलन मस्क का ट्वीट आया कि वो इंडिया आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स आपको फिर इसके बाद देखने को मिलेंगे। अभी 5-10 मिनट पहले ही उन्होंने ट्वीट किया है एलन मस्क ने कि वो इंडिया आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें ना इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। अगर आप डेटा भी देखेंगे तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में बीते पिछले कुछ सालों में। कि देखिए सर, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आप किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं, मैं घर के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं, अगर उसके जाने के लिए आपको रास्ता वो अगर बिल्डर अच्छा नहीं देगा ना, तो चाहे वो अंदर कितनी भी अच्छी फैसिलिटी दे दे, आप नहीं जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप दूसरी जगह से आ रहे हो। तो वही बात है, अगर आपके देश में कोई इन्वेस्टर आएगा और उसको इन्वेस्ट करना है, तो सर वो तो ये देखेगा कि कनेक्टिविटी कितनी बेहतर है, उसके बाद ही वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो अच्छा राजन, एक चीज सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था। जब आपने बोला कि ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को एक्साइटमेंट देने के लिए या उनको इनकरेज करने के लिए ऐसी चीजें बहुत काम आती हैं, तो एक चीज इसमें ये जानना चाहता हूँ, जब बजट की बात करते हैं, जब स्पेंडिंग्स की हाँ जी, जब स्पेंडिंग की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, तो नॉर्मली इंडिया के लिए हमारे आम एक फिनोमिना बना हुआ है कि यार करप्शन का बहुत बड़ा स्कोप होता है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी करप्शन, तो उतना बड़ा स्कोप हो जाता है। तो ऐसे जब प्रोजेक्ट्स को लेके उसको ट्रांसपेरेंटली और उसको कैसे वो पूरी एक्यूरेसी के साथ और पूरा उसकी अकाउंटेबिलिटी को मैनेज करने के लिए, आपको क्या लगता है उस चीज पे आपकी रिसर्च क्या कह रही है? करप्शन होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में, बहुत बड़े लेवल पे होती है या नहीं होती, या उसको कैसे काउंटर क्या किया जाता है इस पॉइंट को? सर ये कहना बिल्कुल गलत हुआ कि नहीं होती है, अफकोर्स होती है, लेकिन हाँ उतने मेजर आपको अभी नहीं देखने को मिलते हैं। माइनर लेवल पे होते हैं जो कि ग्राउंड पे आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लेकिन मेजर नहीं, क्योंकि प्रोसेस आपका क्लियर है जो कि बोलता है, और वो आपका लॉ ही बोलता है कि आप किसी को बिडिंग भी अगर करते हैं या किसी कंपनी को काम देते हैं तो ऐसे नहीं दे सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है कि वो कंपनी प्रोजेक्ट को। क्वालिटी के मामले में भी पूरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता? नहीं, क्वालिटी तो मैंने अभी, आप इसके लिए रील देख सकते हो, मैंने भटिंडा वाले सेक्शन पे मलेरकोटला वाले सेक्शन पर ड्राइव किया है, एंड इज डैम गुड, बहुत ही बेहतर है। 120 का स्पीड लिमिट वो बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उससे ज्यादा ड्राइव किया है उस पर, क्योंकि अभी इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि उस पर कैमरे नहीं लगे थे और स्पीड लिमिट का कोई टैग नहीं, बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट ये कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है आप उस पर देख सकते हो। और एक्चुअली जो कंपनियां हैं जो कंस्ट्रक्ट कर रही है, जैसे एक तो पंजाब की कंपनी है जो कि मेरी बहुत फेवरेट कंपनी है, सीगल इंडिया, उनका कंस्ट्रक्शन का अगर आप काम देखेंगे तो दे आर टॉप नॉच। तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी टॉप नॉच पे नहीं है,
हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब कंपनियां कंस्ट्रक्शन वाली यूज भी कर रही हैं। अगर आप सीकल इंडिया जिसकी मैंने बात करी है सर, वो एक बार में उनके पास जो मशीन थी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप क्या देखते थे कि अगर 4 लेन की रोड है तो एक लेन पहले बनेगा, फिर दूसरा लेन, फिर तीसरा लेन, फिर चौथा लेन, ऐसे ही बनता था ना। तो आपको बम्स मिलते थे वहां पे जब आप ड्राइव करते थे, क्योंकि एक दिन में एक 4 लेन बनाने की मशीन ही नहीं थी तब। आज देखोगे तो एक बार में ये पूरा 4 लेन बना देते हैं। अगर 4 लेन ईस्ट साइड है, 8 लेन का एक्सप्रेस पे है, तो एक ही दिन में ब्रिज आप देखते थे कि ब्रिज पे आपकी गाड़ी जंप कर रही है, क्योंकि ब्रिज थोड़ा ऊपर होता था और रोड थोड़ी नीचे होती थी, तो आप स्पीड में हो तो आपको जंप फील होता था। ये सारी चीजें अब नहीं आपको मिलेंगी। तो ये बहुत सारा इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है। और प्लस अगर ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की ही बात करूं, फिलहाल आपको इस पे 2 लेन ईस्ट साइड मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में इसको 4 लेन तक किया जा सकता है। और एक्स्ट्रा जो लैंड एक्वायर करके रखा है, तो फ्यूचर में इसको आप 5 लेन ईस्ट साइड तक कर सकते हैं, यानी कि 10 लेन का पूरा एक्सप्रेस वे इसको बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये फ्रीवे होगा, लोगों को इसके लिए पे करना पड़ेगा, टोल होगा, या ये फ्री में होगा, कैसे होगा इसके बारे में? नहीं, फ्री नहीं होगा। ऑफकोर्स आपको टोल पे करना पड़ेगा, और टोल जो आप पे करते हैं वो आप मेंटेनेंस के लिए पे करते हैं, क्योंकि सरकार अपने पैसे से उसको बनाती है, लेकिन आपके जितने भी एक्सप्रेसवेज होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। टोल कर्मी जो होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, जो मेंटेन करेगा, क्योंकि आपके उसमें ग्रीनटी होती है, लाइट्स होती है, स्ट्रीट लाइट्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है। इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए आप सरकार टोल टैक्स लेती है। और प्लस ऑफकोर्स क्योंकि अभी जो जितने भी एक्सप्रेसवे हमारे देश में बन रहे हैं वो पीपीपी मॉडल पे बन रहे हैं, यानी कि ये पब्लिक पार्टनरशिप पे बनता है। पब्लिक का भी इसमें पैसा होता है, पब्लिक भी जो एफडी करती है ना, एनएचआई में जो नया फैसिलिटी आया है कि आप अपने पैसे को दीजिए और 8% 9% आपको वो रिटर्न में देंगे, तो उसमें पब्लिक का भी पैसा होता है, उसमें सरकार का भी पैसा होता है। तो पब्लिक ने जो पैसा लगाया है अगर उस एक्सप्रेसवे पे, तो उनको रिटर्न में भी तो चाहिए। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने अगर पैसा लगाया है, यूएस के किसी इन्वेस्टर ने, तो उसको भी तो रिटर्न में पैसे चाहिए। तो वो चीजें वापस करने के लिए सरकार को उस पर टोल लेना पड़ता है, और ऑफकोर्स इस पे भी टोल होगा। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप जितना किलोमीटर ड्राइव करेंगे उतने के ही पैसे लगेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हाईवे पे देखते हैं कि आप अपने गांव से इंटर करते हो और जैसे ही टोल आता है तो पूरे हाईवे का ही पैसा देना पड़ता है। जो दिल्ली से आ रहा है उसको उतना ही देना है, और जो अपने गांव से आ रहा है उसको भी उतना ही देना है। इस पे वैसा नहीं है, इस पे उतना ही किलोमीटर का आपको देना है जितना आपने ड्राइव किया है। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬਲੌਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੀ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਛ ਫੈਕਟਸ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਬਿਫੋਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲਈਏ? ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਟੋਲ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 407 ਦੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। 407 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨੋਰਮਲੀ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਔਰ ਜੰਮੂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ उपलब्धि के तौर पे देखा जाएगा। जी वेरी गुड, बहुत मेहरबानी भूपेंद्र जी, थैंक यू। राजन जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स लेने चाहेंगे? दिल तो ये चाहता था कि आपसे बातें करते रहें, और मैं एक तरह से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मेरे सामने ना पूरे का पूरा हाईवे बन रहा है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे। तो कोशिश करेंगे फिर आने वाले दिनों में दोबारा फिर आपको बॉदर करें और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की कहीं ना कहीं और किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानने के लिए ऑन एयर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। कुछ अखीर में क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पे आप अपनी तरफ से और ऐड करना चाहें तो? थैंक यू सो मच सर, इनवाइट करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए कि हम अपने जो देशवासी दुनिया के अलग अलग कोने में रह रहे हैं उनको बताने के लिए कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और अगर आपको इसके ऊपर डिटेल या रील देखना हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, RS Live India, जहाँ पे मैं रील्स के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। और प्लस देखिए सबसे बड़ा पॉइंट सर ये एक्सप्रेसवे में लास्ट क्लोजिंग में मैं यही बोलूंगा कि अभी जो आप 14 घंटे अपना देते हैं, मान लीजिए दिल्ली से कटरा जाने के लिए, अमृतसर जाने के लिए, या अगर आप 8 घंटे या 7 घंटे देते हैं, आपका टाइम सीधा आधा लगने वाला है। तो एयरपोर्ट से अमृतसर जाने की एकदम बहुत ही कम टाइम लगेगा। एंड आई थिंक ये टाइम भी सेव करेगा और वो बचे हुए टाइम पे लोग कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में टाइम ही पैसा है और ये सही कहा गया है, और उसी को सेव करेगा बेसिकली ये एक्सप्रेसवे। तो सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ब्रदर,
ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਸੋ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ RS ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ G Media Group।